Dear students, today we are going to discuss about the sterilization processes and methods which are being done at industrial level to sterilize the content and the bioreactor as well as and we will see what are the different types of sterilization methods available and what are the feasibility of doing that sterilization choosing that sterilization methods appropriately for any industrial process. So let's discuss sterilization methods. These are this lecture is prepared from again Murray Young Comprehensive Biotechnology, Smith Biotechnology, and from the some pharmacopoeia. So first of all, what is the sterilization? As you all of know at this stage, what is the definition of sterilization? So I'm not going to read it for you, so you can read it yourself. But what is sterilization? Sterilization is it means to basically destroy or kill and eliminate microorganisms which can affect your process, your medium, your culture, your equipment. So you need to clarify all the unwanted microorganisms from your you can say from your whatever the material or whatever the bioreactor it may be. You want to remove all the unwanted microbes, fungus, bacteria, viruses from the surfaces of the equipment medium or your you can say the product as well. So what is the bioburden? We call bioburden as the number of bacteria living on a surface that has not been sterilized. When if one of the surface is not sterilized, then how many whatever the number of microbes present on its surface is called bioburden. So the aim of bioburden testing is to measure the total number of viable microorganism, living microorganism on a medical device or on a industrial, you can say equipment, to determine the most appropriate पैरामीटर फॉर इट्स फाइनल स्टेरिलाइजेशन. मतलब आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल लेवल पे कर रहे हों, चाहे वो कोई कमोडिटी प्रोडक्शन हो या कोई मेडिकल डिवाइस हो या मेडिकल रिलेटेड कोई चीज़ सिंथेसाइज कर रहे हों, आप उसका बायो बर्डन मतलब चेक करते ही हैं ताकि आपको पता हो कि इसके ऊपर नॉर्मली कितने कौन-कौन से और कितने नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, ताकि आप उसके हिसाब से फिर डिज़ाइन करें कि कौन-सी स्टेरिलाइज़ेशन टेक्नीक जो है या मेथड जो है वो ज़्यादा बेस्ट या एप्रोप्रिएट होगा उस पर्टिकुलर जो भी आपका प्रोसेस है उसके हिसाब से. There are certain definitions which are very important to learn because when we are talking about sterilization, there are different approaches and different processes give you different type of sterility. So there are certain definitions. What is antiseptic? Any substance which arrests and prevent the growth of microorganism by inhibiting the activity, but not necessarily destroy that microorganism. And the antiseptic products are applied on the human body as well. Next is bactericides. Bactericides means are those chemical which kill the bacteria. Obviously, they are not they are not being able to used on human body. There is another terminology which is bacteriostatic, means to arrest or retard the growth of bacteria. Bacteriostatic comes under a antiseptic heading as well. Disinfection is a process in which you remove infectious potential microorganism from and but not the bacterial spores. So disinfection process is being done on inanimate objects like tabletop, room, or the facility in which you are doing your industrial biofermentation. Then germicides are those substances that can able to kill pathogens and germs, and again, but not necessarily bacterial spores. Sterility is the absence of viable organisms, all those organisms which are able to survive and they are able to grow, whether they are spores, whether they are microorganisms, they are viable. Sterilization is a process in which all the viable micro forms of microorganisms are removed and destroyed. And what is the vegetative microorganism? It means the growing organism, the active, actively metabolic or reproducing organism.
So there's a more there are different methods of sterilization. They are categorized. Broad categories are the physical sterilization and chemical methods. The physical methods are further divided into sunlight, heat, vibration, radiation, filtration. And chemical methods include, if there are liquids, there are different liquids which can be used for the sterilization, like alcohol, aldehyde, phenolics, halogen, surface active agents, dyes, and some gases can also use as a chemical agent, like formaldehyde and ethylene oxide. All these substances, they arrest the division of bacteria, or they make their you can say they make their basic structure to destabilize. In physical method, you can see the sunlight is the very primitive method of sterilize anything, that you keep that thing in sunlight, and the radiations from the sunlight, it kills that the microbes present on the surface. Sorry. Next is heat. Heat is further divided into further two categories: dry heat and moist heat. Dry heat means red heat, flaming, incineration, hot air ovens, infrared lights. They are all called dry heat. But in moist heat, there's a steam which is maintained at below 100 degrees centigrade, at 100 degrees centigrade, and above 100 degrees centigrade. And that heat, along with the pressure, as a constant pressure, it is a very good source of sterilization. Next is the radiation. In radiation, there are non-ionizing, ionizing, electromagnetic radiation, and filtration. There are earthenware type of material which are used as filtration. There's asbestos, sintered glass, and then membrane filters. They are all used as filters for sterilization. Talking about dry heat sterilization is the killing of microorganism by heating, and heat is a function of the time temperature combination. If the temperature is increased, then time required for killing the microorganism will be decreased. So the cycle recommended as per British Pharmacopoeia 1988 is that if you are minimum for 180 degrees centigrade, the time is not less than 30 minutes. If you're using 170-degree temperature, then the incubation time is not less than 1 hour. And if it is 160 degree centigrade temperature, then time is not less than 2 hours. Then a mechanism of killing the bacteria. What is the mechanism? How they destroy the microbes? Basically, the vital constituent of the cell, like protein, enzyme, nucleic acid, they are denatured by the oxidation. Whenever they are high temperature, the high temperature stimulates the oxidation of biochemical moieties. So the application: dry heat is used to sterilize glassware, test tube, pasture pipette, petri dishes, flask, glassware, glass syringes. The glassware should be pre-washed with apyrogenic water. Porcelain and metal equipment like forceps, scalpels, scissors, they all can be heat sterilized. Dry heat sterilized. Fat, oil, and greasy materials, those are impermeable to moisture. They are the subject of dry heat sterilization. The What are the substances which cannot be used for dry heat sterilization? Like aqueous solutions are not sterilized by dry heat because water will evaporate, and if the container is open and if the container is kept closed, then the container may burst due to pressure developed by the steam. Next is the surgical dressings, or the you can say the clothings, whatever the clothing is may be, they are not the subject to dry heat sterilization, because cotton and cellulosic material, they get charred at high temperature, वो जल जाते हैं. Powders that cannot withstand high temperature, they are not sterilized by dry heat method. So dry heat sterilization से ज़्यादातर जो है वो हम normal labs के अंदर भी जितने भी glasswares होते हैं हमारे, ग्लास फेयर, या जो हमारी आप कह लें वो फोर्सेप्स, स्कैल्पल्स होती हैं, जो स्टील आइटम्स होती हैं, उन सबको हम वाटर से वॉश करने के बाद ड्राई हीट ओवन के अंदर रखते हैं, हॉट एयर ओवन के अंदर रखते हैं, ताकि वो ड्राई हीट मेथड के थ्रू उनके ऊपर जितने भी जो भी उनका बायोबर्डन है, जो भी उनके ऊपर माइक्रोब्स हैं, वो सारे किल हो जाएं. ठीक है. तो हमारे पास ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के अंदर हॉट एयर ओवन है, फ्लेमिंग मेथड है, इंफ्रारेड रेडिएशन है, और ड्राई हीट टनल्स हैं.
ये डिफरेंट आपके पास इसकी इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ये 4 आप क्या कह सकते हैं आपके इक्विपमेंट्स हैं या मेथड्स हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो हॉट एयर ओवन कुछ इस तरह का है, हमारी लैब में भी अवेलेबल है, आप ज़रूर देखें वहाँ जाके। बेंच टॉप पे हॉट एयर ओवन है जिसके अंदर कंपार्टमेंट बने हुए हैं, टेम्परेचर जो है 200 डिग्री से अबव उसमें सेट हो सकता है। तो उसके अंदर हम अपने ग्लास फेयर को रखते हैं ताकि वो सारा का सारा स्टेलाइज़ हो सके। उसके अलावा फ्लेमिंग मेथड है, ये हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब हम माइक्रोबियल टेस्टिंग करते हैं, तो हम ये जो आपकी लूप होता है इसको हम फ्लेम के ऊपर रखते हैं, तो बेसिकली ये ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन ही कहलाती है। उसके अलावा इंफ्रारेड, अगर आपके पास इंफ्रारेड डिवाइस अवेलेबल है तो उसके अंदर भी अगर आप अपना लूप या कोई भी स्कैल्पेल फोर्सेप्स उनको इसके अंदर थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखें, तो जो उनका फ्रंट वाला पोर्शन है वो क्या होगा, वो स्टेलाइज हो जाएगा। ठीक है, ये ड्राई हीट टनल्स हैं, ये इंडस्ट्रियल स्केल पे यूज़ होती हैं, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये एक प्रोसीजर है, प्री हीटिंग ज़ोन है इसके अंदर ये, उसके बाद हीटिंग ज़ोन है, फिर कूलिंग ज़ोन है, और ये डायरेक्शन ऑफ एयर भी देखे हैं, प्रोडक्ट फ्लो, ये आपकी कन्वेयर बेल्ट है जिसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट जो है वो जा रही है, और स्टेनलेस स्टील मैश ट्रांसपोर्ट बेल्ट है, और इसके ऊपर प्री हीटिंग ज़ोन में एयर फ्लो आप देख लें। फिर उसके बाद इसके ऊपर इंसुलेशंस हैं, पॉइंट्स हैं, टेम्परेचर सेंसर लगे हुए हैं, हीटर्स लगे हुए हैं, प्रोडक्ट फ्लो इस साइड पर है। ठीक है, और ये एयर का फ्लो आप देख रहे हैं, एयर सप्लाई, हीपा फिल्टर्स लगे हुए हैं जो कि एयर को क्लीन करके और क्या कहते हैं मॉइस्ट करके या कूल करके भेज रहे हैं। ठीक हो गया, जिससे जो है वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर से फ्लो करेगी, तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो पहले बहुत तेज गर्म हो जाएगी, बाद में ठंडी होकर अनलोड हो जाएगी। ठीक, ये ड्राई हीट टनल है। नेक्स्ट है हमारे पास moist heat sterilization. Moist heat sterilization means that the bacterial death by moist heat is due to denaturation and coagulation of essential protein molecules and cell constituent. Basically, in moist heat sterilization, you will be using pressure and temperature along with time. So and there is basically you will be using steam. आपके पास यहाँ वाटर भी आप वाटर को यूज करते हैं, और या आप वाटर यूज कर लेते हैं, या अगर आपके पास ज़्यादा एडवांस इंस्ट्रूमेंट है तो स्टीम डायरेक्टली रिलीज होती है इलेक्ट्रिकल उससे कॉइल से। ठीक है, वो स्टीम क्या करती है, वो बैक्टीरिया के प्रोटीन्स को डीनेचर कर देती है, बिकॉज एट हाई टेम्परेचर और प्रेशर होती है। तो कंडीशन इसके अंदर क्या है, प्रेशर की 15 लैम्स पर स्क्वायर इंच है, आपका टेम्परेचर 121 डिग्री और टाइम जो है 15 मिनट्स है। अगेन ये जो टेम्परेचर और होल्डिंग टाइम है, ये जो है इसकी मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं, और ये सेट कर सकते हैं हम ऑटोक्लेव के अंदर कि अगर हमारे पास हम 115 टू 118 तक टेम्परेचर रखें तो होल्डिंग टाइम मतलब मिनिमम जो आपने ऑटोक्लेव करना है वो 30 मिनट्स का टाइम होगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा टाइम जो है वो ग्रेजुअली कम होता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन रिकमेंडेड ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो 121 फॉर 15 मिनट्स जो है आप ऑटोक्लेव के करते हैं चीज़ को। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके अंदर हीट कंटेंट प्लस रैपिड हीट ट्रांसफर, एक तो हीट कंटेंट बहुत हाई होता है और रैपिड हीट ट्रांसफर है, इट डिस्ट्रॉयज माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोर एफिशिएंटली देन ड्राई हीट। ठीक हो गया, उसके अलावा ये हम इसको माइक्रोबियल मीडिया, सॉल्यूशंस, इरिगेंट्स, डायल्यूसिस फ्लूइड, बफर्स, इन सब के लिए हम मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन जो है वो सॉल्यूशंस के लिए सही नहीं होती। ठीक है, क्योंकि आपको पहले ही बताया कि जो जिसके अंदर एक्वस मीडियम होगा उसमें तो वो एवेपोरेट कर जाएगा। यहाँ पर चूंकि स्टीम है तो एवेपोरेशन अगर मतलब यहाँ पर भी होती है, लेकिन वो एवेपोरेशन इतनी फास्ट, इतनी ज्यादा तेज नहीं है जितनी ड्राई हीट के अंदर होती है, क्योंकि इसके अंदर ये मॉइस्ट हीट है, प्रेशर भी मेंटेन है साथ में। सो इट रैपिडली पेनिट्रेट्स पोरस मटेरियल एंड इट इज वेरी सुटेबल फॉर स्टरलाइजिंग सर्जिकल ड्रेसिंग एंड मटेरियल्स। ठीक है, यही वजह है, क्योंकि प्रेशर है it can penetrate materials, so it is most suitable for sterilization. The process is adaptable for plastic container and some other special dosage form. ये plastic containers को भी इसमें आप यूज कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक जो है वो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर प्रेशर रेजिस्टेंट होनी चाहिए, मतलब सिंपल प्लास्टिक नहीं आप यूज कर सकते इसके अंदर। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि ये एनहाइड्रस मटेरियल्स लाइक पाउडर्स और ऑयल्स को आप इसके अंदर नहीं स्टेरिलाइज कर सकते। ठीक है, और जितने भी थर्मोलाइबल सब्सटेंसेस हैं, वो थर्मो सेंसिटिव सब्सटेंसेस जितने भी हैं, उनको आप इसके अंदर नहीं स्टेरिलाइज कर सकते।
एग्जाम्पल्स क्या हैं हीट स्टेरिलाइजेशन की? हम ऑटोक्लेव हमारे मतलब हीट स्टेरिलाइजेशन तो एक प्रिंसिपल है ना, तो उसके लिए जो एप्लीकेशन है उसकी जिसके अंदर ये मैं प्रिंसिपल अप्लाई होता है वो ऑटोक्लेव है या टेंडलाइजेशन प्रोसीजर है या हीटिंग विद बैक्टीरियासाइड है। ये तीन इसके तरीकेकार हो सकते हैं जिनके थ्रू आप इनकी इस प्रिंसिपल की एप्लीकेशन देखते हैं। ये हमारे पास ऑटोक्लेव होता है जी इस तरह से। इसके अंदर ये देखें, ये इसका डोर है, ये वो चैम्बर है अंदर जहाँ पर आप अपनी चीजें रखेंगे। परफोरेटेड शेल्फ है, ये एक यहाँ पर एक कॉइल है जिसके थ्रू जो है एलिमेंट जो है स्टीम जनरेट करेगा। ये आप देखें, ये प्रेशर रेगुलेटर फॉर स्टीम सप्लाई, यहाँ से स्टीम जा रही है, ठीक है। थर्मामीटर अटैच है। ये स्टीम आपके स्टीम जैकेट के थ्रू से होती हुई जो है वो कहाँ जाएगी? वो ये चैम्बर के अंदर जाएगी, स्टीम चैम्बर के अंदर जाएगी और आपकी जो प्रोडक्ट है उसको जो है ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर भी रेज करेगी, प्रेशर भी इसके अंदर मेंटेन है। तो यहाँ पर आपकी जो जितने भी माइक्रोबियल कंटेंट होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये जो फ्लूइड है ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है, ठीक है। और ये आप बाकी फ्लो देख सकते हैं कि जी बाकी फिर जो एयर है, रेजिडुअल एयर है, उसका फ्लो किस तरह से और फिर वो वेल्व के थ्रू वेस्ट लाइन में कैसे जा रहा है। ये एक इंडस्ट्रियल लार्ज स्केल ऑटोक्लेव है, ठीक है। ये भी पिक्चर में आप देख लें, इंडस्ट्री लेवल पे इतने बड़े बड़े ऑटोक्लेव यूज होते हैं। एप्लीकेशन ऑटोक्लेव की क्या है जी? इट स्टरलाइज एनीथिंग व्हिच इज नॉट इंजर्ड बाय स्टीम एंड हाई टेम्परेचर ऑफ स्टरलाइजेशन। इसमें एक्वस पेरिनेट्रल सोल्यूशन भी आ जाते हैं, डिस्टिल वाटर, सलाइन सोल्यूशंस, आपके बफर्स जो हैं उन सबको आप यूज कर सकते हैं। एक्वस मीडिया विद और विदाउट कार्बोहाइड्रेट और जेलेटिन, इवन अगर आपका एगर आपने डाला है अपने मीडिया के अंदर उसको भी आप स्टेलाइज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सर्जिकल ड्रेसिंग्स, फाइबर्स, फैब्रिक्स, प्लास्टिक एंड रबर क्लोजर्स को भी आप इसके अंदर मतलब जो प्लास्टिक ट्यूबिंग्स होती हैं जैसे फर्मेंटर के साथ बहुत सारी ट्यूबिंग है उनको भी आप ऑटोक्लेव कर सकते हैं, ठीक है। मेटल इंस्ट्रूमेंट्स को आप यूज करते हैं, ग्लास ऑपरेटर्स एंड कंटेनर्स को भी आप इसमें यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें हीट स्टेरिलाइजेशन ऑफ लिक्विड्स को लेकर, कीपिंग इन व्यू पर्टिकुलरली फर्मेंटेशन। सो हमारे पास दो तरह के मेथड्स होते हैं लिक्विड सबस्ट्रेट स्टेरिलाइजेशन में, बैच स्टेरिलाइजेशन और कॉन्टिन्यूस स्टेरिलाइजेशन। बैच स्टेरिलाइजेशन के अंदर ये है कि आप जो है स्टीम से इसको यूज करते हैं इस बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी में। बैच स्टेरिलाइजेशन जो है नॉर्मली इट कैरिड आउट 121 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द होल्डन टाइम ऑफ दिस टेम्परेचर वेरी फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर। 10 to 50 मिनट्स का टाइम पीरियड है आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से जो जिस पर आप इसको मेंटेन रखते हैं। तो बैच स्टेरिलाइजेशन इट कैन आल्सो बी डन बाय इंजेक्टिंग द स्टीम टू द मीडियम व्हिच इज अ डायरेक्ट मेथड, कि आप स्टीम इंजेक्ट कर दें। दूसरा मेथड क्या है कि आप इंटीरियर कॉइल के थ्रू स्टीम इंजेक्ट करें जो कि एक इनडायरेक्ट मेथड है। फॉर डायरेक्ट बैच स्टेरिलाइजेशन स्टीम शुड बी प्योर एंड फ्री फ्रॉम ऑल केमिकल एडिटिव। ये जो आप डायरेक्ट स्टीम अगर आप देते हैं डायरेक्ट मेथड के थ्रू तो आपकी जो स्टीम है उसको भी प्योरीफाई होना जरूरी है, वो भी फिल्टर से पास होकर आए और उसके अंदर कोई भी ऐसे केमिकल एडिटिव्स ना हो जो कि आपके प्रोसेस को डिस्टर्ब करें फर्दर। डिसएडवांटेज क्या है बैच स्टेरिलाइजेशन का? क्योंकि इसके अंदर आपने 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे बस रख देना है और आपका सारा मीडिया इसके अंदर मौजूद है, आपका जो बायोरिएक्टर की केमिकल नेचर भी इसके अंदर इफेक्ट करती है। तो ज्यादातर जो इफेक्ट होता है वो कल्चर मीडिया होता है कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ऑल्टर कर जाते हैं, पीएच चेंज जाती है, डिस्कलरेशन ऑफ मीडिया कॉमन है इसके अंदर। ये सारे इश्यूज डिसएडवांटेजेस हैं बैच लिक्विड स्टेरिलाइजेशन के। दूसरा उसके अलावा हाई एनर्जी कंजम्पशन है क्योंकि 2 से 4 घंटे लगते हैं पूरे बायोरिएक्टर को 120 डिग्री पे पहुंचने में, और फिर 20 से 60 मिनट तक एक्चुअल प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन है और उसके बाद 1 से 2 घंटे कूलिंग है। तो इसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो रही है, तो ये कॉस्टली प्रोसीजर है बैच लिक्विड स्टेरिलाइजेशन, लेकिन ये कॉमन प्रोसीजर भी रहा है काफी अरसे तक। नेक्स्ट है जी कॉन्टिन्यूस स्टेरिलाइजेशन। कॉन्टिन्यूस स्टेरिलाइजेशन को हम हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। इसके अंदर भी टेम्परेचर जो है वो इट्स kill the spore bearing organism or make it possible to achieve sterility in shorter holding time under heater temperature. So it carried out at 140 degree and a very short period of time like 30 to 120 seconds। 140 पे सिर्फ 20 से 120 सेकंड तक आप इसको कर रख रहे हैं, जबकि बैच में आप कितने देर रखते हैं? 20 से 60 मिनट तक रखते हैं, ठीक है। तो अब आप देख लें कि एनर्जी कंजम्पशन कितनी ज्यादा है बैच स्टेरिलाइजेशन के अंदर।
कंटिन्यूस स्टेरिलाइजेशन का प्रिंसिपल क्या है जी कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मच शॉर्टर एट हाई टेम्परेचर, कि जितना आप हाई टेम्परेचर पे होंगे उतना टाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का टाइम जो है वो थोड़ा तो चला जाएगा। तो कंटिन्यूस स्टेरिलाइजेशन इज कैरिड आउट बाय डायरेक्टली इंजेक्टिंग द स्टीम और बाय मीन ऑफ हीट एक्सचेंजर्स। यहाँ पर हीट एक्सचेंजर्स भी होते हैं या डायरेक्टली स्टीम भी कर सकते हैं। तो ये जो एक्चुअल टाइम है कि आपने 30 से 120 सेकंड्स के बीच में कितना टाइम देना है, ये डिपेंड करता है साइज ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स में। मतलब आपको अपना बायो बर्डन पता करना पड़ेगा, बायो बर्डन की क्या सिचुएशन है। अगर बिगर साइज है तो आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। एडवांटेज इसका सबसे पहले तो ये है जी 80 टू 90% एनर्जी कंजर्वेशन है इसके अंदर। फिर दूसरी बात ये कि कॉमन स्टेरिलाइजेशन ऑफ अ ब्रॉथ मींस दैट कंटीन्यूअस स्टेरिलाइजेशन ऑफ द ब्रॉथ मींस टोटल हीट ट्रीटमेंट ऑफ अबाउट 3 टू 5 मिनट्स, जो कि बैच से कंपेयर में किया जाए तो 3 से 10 घंटे लगते हैं। मतलब बैच के अंदर जो टोटल टाइम है सेम वॉल्यूम का वो 3 से 10 घंटे है। तो कंटीन्यूअस स्टेरिलाइजेशन का दूसरा एडवांटेज ये है कि आप एम्प्टी बायोरिएक्टर को स्टेरिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर ऑलरेडी स्टेरिलाइज एंड कूल प्रोडक्ट आप उसके अंदर डाल सकते हैं। मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब, क्योंकि आप देखिए टाइम पीरियड कितना है 30 से 30 से 120 सेकंड। तो उसमें क्या है कि 30 से 120 सेकंड जो है वो बहुत ही माइनर टाइम है। उसमें अगर आपका बायोरिएक्टर आप स्टेरिलाइज कर लें कंटीन्यूअस स्टेरिलाइजेशन से, और आपका जो प्रोडक्ट है या जो आपका मीडियम है उसको आपने पहले ही स्टेरिलाइज किया हुआ हो, चाहे ऑटोक्लेव मेथड से स्टेरिलाइज कर लें और फिर उसको जो है कूल करें, तो वो आपका टाइम ज़रा कम हो जाता है। तो प्रिपरेशन टाइम कैन बी शॉर्टेंड एंड दस द बायोरिएक्टर कैन बी मोर एफिशिएंटली यूज्ड। देन लिमिटेशन ऑफ दिस प्रोसीजर इज ओनली दैट देयर आर सॉल्ट प्रेसिपिटेशन। कुछ कंपाउंड जो है मीडियम के वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, सॉल्ट प्रेसिपिटेशन हो जाती है एट वेरी हाई टेम्परेचर डिफरेंस, और इट कैन अकर इन वेरी शॉर्ट टाइम बिटवीन स्टेरिलाइजेशन एंड कूलिंग। जब आप स्टेरिलाइज करके कूल कर रहे हैं उस वक्त जो है सॉल्ट प्रेसिपिटेशन के चांसेस हैं, जिसकी वजह से यही एक इसकी लिमिटेशन है। दूसरा ये कि जो अगर स्टार्च कंटेनिंग मीडिया हो तो वो विस्कस हो जाता है और फिर वो यूज़ नहीं हो सकता। तो इसमें लाइक बेस्ट तरीका यही है कि आप बायोरिएक्टर को एम्प्टी बायोरिएक्टर को स्टेरिलाइज कर लें और उसके बाद अपना मीडियम जो है जिसके अंदर अगर कोई स्टार्च कंटेंट है, क्योंकि स्टार्च कंटेंट डेफिनेटली होगा क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, तो फिर आप अपना जो स्टार्च मीडिया है उसको आप सिंपली ऑटोक्लेव कर लें। तो इस तरीके से ये मेथड इंडस्ट्री लेवल पे काम करते हैं। नेक्स्ट है गैसियस स्टेरिलाइजेशन। गैसियस स्टेरिलाइजेशन में गैसेस को हम मटेरियल को स्टेरिलाइज करते हैं गैसेस से, जिसके अंदर इथिलीन ऑक्साइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है, ग्लूटाल्डिहाइड है, प्रोपिलीन ऑक्सीडाइज है, ऑक्साइड है। Ethylene oxide is the only gas that is successful on the large scale of industrial and medical applications. इसके इथिलीन ऑक्साइड के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड, इथिलीन ऑक्साइड और प्रोपिलीन ऑक्साइड, ये सारे के स्ट्रक्चर्स हैं। बेसिकली अल्कलाइजेशन मेथड के थ्रू जो है ना ये अल्कलेट कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एंजाइम्स को, प्रोटीन्स को, इसकी वजह से वो प्रॉपर काम नहीं कर सकते। फिर वो फैक्टर्स जो गैसियस स्टेरिलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं जिसमें सबसे पहले जी कंसंट्रेशन ऑफ इथिलीन ऑक्साइड, उसके अलावा ह्यूमिडिटी ऑफ द स्टेरिलाइजिंग एटमॉस्फेयर, temperature of sterilization, time exposure, physical nature and permeability of the load, and then atmospheric preconditioning of the load before sterilization. स्टेरिलाइजेशन से पहले जो एटमॉस्फेरिक प्री कंडीशनिंग है कि आपका जो लोड है, जो आपका सब्सटेंसेस हैं जिनको आपने ट्रीट करवाना है, उनकी क्या एटमॉस्फेरिक मतलब उनके ऊपर क्या नेचर है उनकी, और क्या उसमें एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, ये सब चीज़ें इफेक्ट करती हैं। स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशंस को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड स्ट्रीम्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। लाइक अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो उसमें इंफ्रारेड आ जाती हैं रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्सरेज एंड गामा रेज हैं। और अगर हम पार्टिकुलेट मैटर की बात करें तो हमारे पास अल्फा रेडिएशन एंड बीटा रेडिएशंस हैं। तो फॉर स्टेरिलाइजेशन इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, गामा रेडिएशन, हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स, इन सब को स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। ये आगे इनकी वेवलेंथ और एनर्जी लिखी हुई है कि इनकी पर्टिकुलर रेडिएशंस की कितनी कितनी एनर्जी है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये रेज बेसिकली करती क्या है, बेसिकली ये जो डीएनए स्ट्रक्चर है उसको उसमें डायमर्स बनाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाता है माइक्रोब्स का, तो आगे सिंथेसाइज नहीं, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। स्टेरिलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन की बात करें, फिल्ट्रेशन
का जो मेथड है उसके ज़रिए आप जो थर्मोसेंसिटिव सॉल्यूशंस हैं उनको स्टरलाइज़ कर सकते हैं, जिनको और वो सारे के सारे सॉल्यूशंस जो हैं उनको कन्वेंशनल हीटिंग मेथड से स्टरलाइज़ नहीं किया जा सकता। सो ये सॉल्यूशंस जो हैं ये स्टेराइल बैक्टीरिया प्रूफ फ़िल्टर से गुज़रते हैं, मतलब आप ऐसे फ़िल्टर से पास करते हैं जो कि बैक्टीरिया प्रूफ होते हैं, और जब ये मटी सॉल्यूशंस जिनके अंदर चांसेस हैं कि ब माइक्रोब्स होंगे, वो जब इस फ़िल्टर से गुज़रते हैं, तो जो लिक्विड है वो एसेप्टिकली स्टेराइल कंटेनर के अंदर चला जाता है, और माइक्रोब्स जो हैं वो बाहर ही फ़िल्टर पर रह जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है, this the process involve considerable hazards, hence ब्रिटिश फार्माकोपिया रिक्वायर्स अ टेस्ट फॉर स्टेरिक। अच्छा, इसके अंदर ये है कि फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस इफ़ेक्टिव तो है, लेकिन फिर भी जो फ़ार्माकोपियाज़ हैं, वो जो फ़ार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल लेवल प्रोडक्ट्स बनती हैं, उनके लिए जो फ़ार्माकोपिया कहते हैं, वो जो उनकी बुक है जिसके अंदर डिफरेंट स्टैंडर्ड मेथड लिखे हुए हैं, वो जो फ़ार्माकोपिया हैं, वो ये कहती हैं कि जी जितने भी ये फ़िल्टर स्टेरिलाइज़्ड प्रोडक्ट होती हैं ना, इन सब की स्टेरिलिटी टेस्टिंग करनी चाहिए। ठीक है? मतलब आपने फ़िल्टर से गुज़ार लिया है, आपका एक सॉल्यूशन जो है वो फ़िल्टर से पास होके सील हो गया है और वो नए कंटेनर में आ गया, लेकिन इवन देन आपके उस सॉल्यूशन की स्टेरिलिटी चेक होनी ज़रूरी है कि उस सॉल्यूशन के अंदर मज़ीद कोई माइक्रोब रह तो नहीं गया, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो इसमें हम करते क्या हैं इस स्टेरिलिटी टेस्टिंग के अंदर कि आप ये जो स्टेराइल कंटेनर जिसके अंदर आपने सपोज़ जैसे कि वाटर फॉर इंजेक्शंस होते हैं, ठीक है? जो ब बाज़ार में मिलते हैं इम्प्यूल्स, वाटर इम्प्यूल्स, जो इंजेक्शन की तरह के होते हैं, उनको आप फॉर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है? तो उसके अंदर से आप वो जो वाटर फॉर इंजेक्शन है वो स्टेराइल कंसीडर किया जाता है। उसको आप उसके अंदर से एसेप्टिकली ओपन करके फ़िल्टर पेपर से क्रॉस करेंगे, किसी रेगुलर फ़िल्टर पेपर से नहीं, मेम्ब्रेन फ़िल्टर पेपर से, वो जो पर्टिकुलरली फ़िल्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है, उससे पास करेंगे, और फिर उस फ़िल्टर पेपर को आप माइक्रो एलबी मीडिया पे या जो भी आपका मीडिया है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़्म ग्रो होते हैं, नेचुरली एनेगर हो गया, उसके ऊपर वो फ़िल्टर पेपर रख देते हैं। तो अगर उस फ़िल्टर पेपर के ऊपर अगर उस वो जो स्टेराइल वाटर है, उसके अंदर कोई माइक्रोब नहीं होना चाहिए। तो अगर उसके अंदर कोई माइक्रोब होगा, तो ये फ़िल्टर पेपर जब मीडिया पे रखा जाएगा और वहाँ पर इंक्यूबेट होगा 3 से 5 दिन तक, तो उसके ऊपर माइक्रोब ग्रो कर जाएँगे, और अगर उसके ऊपर माइक्रोब ग्रो कर गए, तो इट मीन्स जो आपका स्टेरिलाइज़ेशन प्रोसीजर है, जो स्टेरिलाइज़ेशन प्रोसीजर है, ये वाटर इम्प्यूल्स बनाने का, वो इफ़ेक्टिव नहीं है, वो डिफेक्टिव है। ठीक है? तो उसको ठीक होने की ज़रूरत है। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। ये देखें, ये ग्रामेट इसकी एक एक्सप्लेनेशन है थ्रू फिगर्स। ये एक फ़िल्टर पेपर है जिसका पर्टिकुलर पोर साइज़ है। इसको आपने ये इस तरह वैक्यूम फ़िल्टर में सेट किया, वैक्यूम पंप के अंदर सेट किया आपने इसको, ठीक है? तो ये आपने जो आपका सपोज़ जो भी सैंपल है या वाटर फॉर इंजेक्शन है, इसको आपने इससे पास करना है। ये वैक्यूम के अंडर जो है ये स्टेराइल फ़िल्ट्रेट यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगा। फिर इसको आपने ये जो फ़िल्टर पेपर जो बीच में रखा है, ये वाला फ़िल्टर जिसके ऊपर माइक्रो हमें लग रहा है कि उसपे कैप्चर हो गए होंगे, इसको फिर आपने बैटरी प्लेट के ऊपर जिसके अंदर मीडिया मौजूद है, उसके ऊपर इसको इंक्यूबेट कराना है 3 से 5 दिन। तो अगर इसके ऊपर माइक्रोब ग्रो हो गए, तो आपका जो स्टेराइल सैंपल जिसको आप कह रहे थे कि जी ये स्टेराइल है, अगर तो उसके ऊपर माइक्रोब ग्रो हो गए उसके फ़िल्टर पेपर के ऊपर, तो फिर तो वो स्टेराइल ना हुआ ना, फिर इसका मतलब है आपके मेथड के अंदर प्रॉब्लम है, उसको ठीक होने की ज़रूरत है। ठीक है? तो ये फार्माकोपियाज़ ये कहती हैं कि इन थर्मोलाइबल सॉल्यूशंस लेबाइल सॉल्यूशंस को भी चेक करने की ज़रूरत है इवन आफ्टर फ़िल्ट्रेशन। ठीक है? मोड ऑफ एक्शन क्या होता है इसका जी? पहले सीविंग है, फिर इंट्रैपमेंट है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। सीविंग तो सिंपल ये है कि जो पार्टिकल बड़े होंगे पोर साइज़ से, वो फ़िल्टर के ऊपर ही रिटेन कर जाएँगे। इंट्रैपमेंट क्या है कि वो पार्टिकल जो फ़िल्टर के पोर से छोटे पार्टिकल्स हैं, वो फ़िल्टर के अंदर जो पोर चैनल है उनके अंदर आ जाएँगे और इनके अंदर इंट्रैप हो जाएँगे। थर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है कि वो पार्टिकल जो अट्रैक्शन रखते हैं होंगे फ़िल्टर पोर की सरफेस के साथ, वो उसके अंदर ही ढेर हो जाएँगे, वो फ्लूइड में नहीं जाएँगे। मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ किए जाते हैं, नो डाउट इनके डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन ये फ़िल्टर्स जो हैं ये काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं फिर भी थर्मो सेंसिटिव हीट सेंसिटिव सॉल्यूशंस के लिए। मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स जो हैं वो सेलुलोज़ डेरिवेटिव्स हैं, और ये वेरी फाइन स्ट्रक्चर्स, इनके अंदर होल होते हैं। पोर साइज़ जो है वो 0.22 टू प्लस माइनस 0.2 माइक्रोमीटर, इससे भी लेस होता है। दे आर ब्रिटल व्हेन ड्राई, और इनको स्टोर किया जा सकता है काफ़ी अरसे तक, एंड दे बिकम टफ व्हेन डिप्ड इन वाटर।
सो दे कैन बी स्टेरिलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग और बाय इथिलीन ऑक्साइड गैस, मतलब जब ये सिंथेसाइज होते हैं, जब ये मार्की बन अपनी इंडस्ट्री में बन रहे होते हैं, तो इनको ऑटोक्लेव और इथिलीन ऑक्साइड गैस से स्टेरिलाइज भी किया जा सकता है, लेकिन ड्राई हीट से नहीं कर सकते क्योंकि ये डिकम्पोज जाते हैं 120 डिग्री पे, क्योंकि ड्राई हीट में टाइम पीरियड ज़्यादा होता है। So the membrane filters are suitable for sterilizing aqueous and oily solutions, but not for organic solvent like alcohol and chloroform. उनके साथ ये नहीं इनको इंटरेक्ट कराते क्योंकि ये उनके एज सॉल्वेंट के तौर पे बिहेव करते हैं। मेम्ब्रेन फिल्टर्स जो हैं ये जनरली ब्लॉक्ड बाय डर्ट पार्टिकल और ऑर्गेनिजम्स, सो प्री फिल्ट्रेशन जरूरी है, मतलब आपने मेम्ब्रेन फिल्टर से पहले एक सिंपल फिल्ट्रेशन कर लें सिंपल फिल्टर पेपर से, ताकि जो भी उसके अंदर पार्टिकुलेट मैटर्स हैं वो मेम्ब्रेन फिल्टर को क्लॉग ना करें। मेम्ब्रेन फिल्टर की एग्जांपल है में एमएफ मिलीपोर हैं जो कि सेलुलोज एस्टर से बने हुए हैं, सार्टोरियस रेगुलर हैं जो कि सेलुलोज नाइट्रेट से बने हुए हैं, और गेलमैन ट्राइएसिटेट मेट्रिसल जो है वो सेलुलोज ट्राइएसिटेट से बने हुए हैं। इसके अलावा जो फिल्ट्रेशन प्रोसीजर में फिल्टर्स यूज होते हैं उसमें ग्लास फिल्टर्स हैं, सिंटेड फिल्टर मतलब बोरोसिलिकेट ग्लास को फाइनली पाउडर में फॉर्म में बनाया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, और फिर ये पार्टिकल्स जो हैं एंड द पार्टिकल्स ऑफ रिक्वायर्ड साइज आर सेपरेटेड, और फिर इनको डिस्क माउंटेड शेप में पैक किया जाता है और हीट किया जाता है जब तक ये पार्टिकल आपस में फ्यूज नहीं कर जाते। और ये डिस्क होती हैं इनके पोर साइज जो है वो 16 टू 40 माइक्रोमीटर होते हैं और ये फिल्ट्रेशन के लिए यूज होते हैं, और फिर इनको फर्दर सल्फ्यूरिक से क्लियर किया जाता है। ये देखें, ये जो आपको सरफेस नजर आ रही है ना, ये बेसिकली बोरोसिलिकेट को फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में शिफ्ट किया हुआ है, और फिर उससे उसको फिर फर्दर फिर जो है हीट अप करके फ्यूज किया हुआ, फिर इसके ये सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स बने हैं। देन इज सीएट्स फिल्टर्स, ये इनके अंदर एस्बेस्टॉस होता है जिसके जो कि ये भी एक इफेक्टिव तरीका है स्टेरिलाइज करने का मीडिया को और ऐसे सॉल्यूशंस को जो कि हीट सेंसिटिव हैं। सिरेमिक फिल्टर्स ये तो आपको बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो वाटर फिल्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, सिरेमिक फिल्टर्स जो हैं वो आपके डर्ट को और आपके क्लोरीन्स को, लेड को और टर्बिडिटी कॉजिंग जितने भी सब्सटेंसेस हैं उन सबको रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है जी हाउ टू एवेलुएट फिल्टर्स। ये जो फिल्टर्स हैं जिनकी हमने अभी सारों की बात की है, इनको एवेलुएट कैसे करते हैं। एक तो बैक्टीरिया, एक तो मैंने आपको बताया था स्टेरिलिटी टेस्टिंग, ठीक है, उसको बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्टिंग भी कहते हैं। तो आप डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ बोथ कल्चर ऑफ सेराटिया मार्सिनेसिस is passed through the filter and the filtrate is collected aseptically and incubated at 25 for 5 days. The filter passes this test if no growth is found after 5 days of incubation. ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड मेथड है कि आपने फिल्टर्स को इस तरीके से चेक कर रहा है। ठीक है, वो जो मैंने आपको बताया स्टेरिलिटी मेथड वो है कि एक स्टेराइल सोल्यूशन जो कि कमर्शलाइज या जो एक कंपनी क्लेम कर रही है जी हमारी सोल्यूशन स्टेराइल है, उसकी स्टेरिलिटी को चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, ये बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्टिंग है। नेक्स्ट है बबल पॉइंट टेस्टिंग। बबल पॉइंट टेस्टिंग के अंदर आप जो है फिल्टर को चेक करते हैं कि वो प्रेशर उस प्रेशर पे जहां पर उसका जो लार्जेस्ट पोर है of the wetted filter is able to pass air। ठीक है, मतलब a bubble point test of a test filter is the pressure at which the largest pore of the wetted filter is able to pass air। मतलब जब आपका फिल्टर जो है जिसके ऊपर आपने जो भी सब्सटेंस को फिल्टर करना है, जब वो उसके ऊपर आएगा तो वो प्रेशर पॉइंट जिस पर सबसे बड़ा पोर जो है वो एयर को पास करने की कैपेसिटी रखता है, उसे बबल पॉइंट टेस्ट कहते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि filtration should normally be performed at pressure lower than the bubble point of a membrane. This prevent gas from passing through the filter at the end of the filtration cycle and thus prevent excessive foaming। foaming नहीं होती, foaming समझते हैं ना, अब तो आपको बता दिया foaming क्या होती है। तो इस तरीके से जो है चेक करते हैं। नेक्स्ट ये आपका समरी है, ये आप लोग इसको खुद गो थ्रू कर लीजिएगा। यही सारी बातें जो मैंने बताई हैं वही इसके अंदर आपको मजीद क्लियर करने के लिए समरी बनाई गई है। तो ये आप पढ़ें और कोई भी क्वेश्चन हो फिर तो आप मुझसे पूछें। एंड थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू आर वेलकम टू आस्क। अल्लाह हाफिज।